Hello. Good afternoon, SYBSC students. Shall we start? Yes. Shall we start? Okay. Yes. हाँ समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है Okay. So yesterday the unit number 1 is over. Module number 1 is over. For your kind information that by seeing this situation that your exam is not be fixed whether it is offline or whether it is online. So those the students who are not attending lectures or not making notes, so please attend the lecture, and everything is provided to you by YouTube and online, and PPTs are sent to you. But have a notes because you don't have the books right now. Am I right? You don't have the books right now. Am I right now? Am I right? So whatever the notes will be given to you or whatever the notes will be sent to you, please write it down and have a habitual of writing also. So it may be easier for you. Otherwise, what happens whenever the exam date will be declared? At that time, you will be in the confusion. At that, it will make a chaos for you. It will make a chaos for you. For within one day, how will I read the notes? Or if I don't have the notes, what should I do? Understand? Understand? Yes or no? Yes, ma'am. So please be aware. Those who are not attending lectures or not making notes, please be aware. Yesterday I finished that first unit, so I will send the PPT of first unit. That whatever the remaining points, I will send to you right now after this lecture. Okay. So you can see here that dealing with environment concern, unit number 2 means dealing with disaster. That most of you or that most of the people or most of the students have written the projects on disaster. Am I right? So at least you have the little bit idea what is disaster. Reply me. What is disaster? Huh? Do you know that, no? If you have written on disaster, just see today's present day is that out of 100, 125 students, only 8 students are present on FC lecture. So whatever the problems you are creating for you, not I am. That if you don't get the notes, if you don't write, then you will not get the notes. And at the end of the time, I can't do anything for you. Can't do anything for you. Okay. So I'll start. The concept of the disaster. Indian subcontinent is susceptible of different types to different types and natural disaster owing to unique and climatic characteristics. As we know that India is a subcontinent and India is a subcontinent country and it has the different types of climate and geographical space and geographical area. So disaster also occurs according to the or related to the climatic characteristics. Okay, the occurrence of disaster along with losses over the years has been increasing in the larger population being vulnerable to natural disaster. Means that whatever that happens from the past to present, that natural disaster occurs, it depends on that larger population. It depends on the larger population. Okay. So whenever the natural disaster occurs, in short we can say that what is the meaning of disaster? The things which we cannot get or the things which will not be recovered, it is called disaster. So whenever the natural disaster occurs, that is uh, number of natural disasters are occurring and increasing day by day. Okay, this time that we experience this kind of disaster in June right now. Am I right, all of you? All of you? Am I right, all of us? We have experienced on 3rd Yes, June. Okay. So disaster refers to the data which cannot be recovered. The things will not be recovered. The word disaster came to English language in the 16th century through the French word disaster.
So the word disaster came in the 16th century. From the 16th century we are using this word, and it's particular French word, and that is disaster. Now we will see the meaning. Look at here. The next line. Disaster is sudden calamitous event bringing the great damages, loss and destruction and devastations to the life and property. So whenever the disaster occurs, that it occurs and it goes. It occurs and it goes. But later on its impact is seen on the social life, on the economic life, loss of properties, loss of damages. ओके दैट अभी का जब हम 3 जून का बात करें या 3 जून में जो साइक्लोन आया था, 3 जून को जो साइक्लोन आया था, तो जिस एरिया में ये साइक्लोन आया था, तो हरणे हो, दापोली हो, मुरुड हो, रत्नागिरी हो, इतना सबका लोगों का नुकसान हुआ है कि उसका हम भरपाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं भरपाई कर सकते हैं। अभी सभी को पता है, जो हरणे में रहते हैं, जो मुरुड में रहते हैं, सभी को कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा ना। सबके घर में कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। यस और नो? यस मैम। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो चीजें चली गई हैं वो तो लॉस हो गई है, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, उसको हम रिकवर भी नहीं सकते, उसका रीयूज भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत मेहनत से घर बनाया है और कोई आके आपका घर तोड़ के जाए या आपके घर को कुछ हो गया, तो आपका जी जरूर चलेगा कि मैंने इतने मेहनत से खड़ा किया है। एम आई राइट? एम आई राइट? हमको वो इम्पैक्ट दिखाई देती है कि नहीं? अगर हमारी चीज हमारे नजरों के सामने टूटती हुई दिखाई देती है, तो हमको दुख होता है कि नहीं होता है? दुख होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, द डैमेज caused by the disaster is immeasurable. Measurable means which is countable, and the immeasurable means which is not countable, and the varies with the geographical location, climate and types of the earth's surface, degree of the vulnerability. Vulnerability means that vulnerability means that physically or emotionally intend to what we can say, that intend to bear it. Okay, हाँ, physically and emotionally to bear it. Okay, कि आप जितना strong होते हो, कि आपकी जो हम बोलते हैं, जो हमारी strength है वो हमारी होती है bearing capacity, तो आप कितना सहन कर सकते हैं और उतना उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं vulnerability. तो जब हम इस तरह के कुछ नेचुरल या पैंडेमिक या नेचुरल डिजास्टर आते हैं या होते हैं, तो उसका जो होता है वो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, देन टाइप्स ऑफ द अर्थ के हिसाब से हमको ये यहाँ पे दिखाई देता है। दिस इन्फ्लुएंस द मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्टेट ऑफ अफेक्टेड एरिया। तो जिस एरिया में ये घटना बनती है या घटना घटती है, तो उस एरिया का हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये एरिया हमें बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड दिखाई देता है। that area was laying down at that time, was lying down at that time, कि उसका जो स्तर होता है, जो डेवलपमेंट का या अपग्रेडेशन का, वो कैसा होता है? डाउन होता है। ओके, जनरली डिजास्टर affect the following, that it completely disturb the normal day to day life. अगर आपको ये पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं, ओके, और अर्थक्वेक है, भूकंप है, तो क्या महसूस होता है हमको? क्या महसूस करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल ये अर्थक्वेक आपने कभी महसूस किया है? अर्थक्वेक आपने कभी महसूस किया है? यस और नो? आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू। यस और नो? भूकंप आपने कभी महसूस किया है? यस और नो? भूकंप आपने महसूस किया है? आप सुन रहे हैं सभी? आप सुन? यस। ओके, तो जैसे भूकंप आता है, फॉर एग्जांपल हम कुर्सी में बैठे हैं या जमीन पर बैठे हैं, तो उसका हमको ये आंतरिक या अंदर, जमीन के अंदर क्या चल रहा है उसका थोड़ा सा एहसास होता है, उसका इमेजिनेशन या उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ झटके दिखाई दे रहे हैं, झटके लग रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो जमीन होती है वो एक जगह में स्थिर नहीं रहती, वो जगह जमीन हिलने लगती है। तो ये टाइप के जो हम नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तो वो डे टू डे लाइफ में जितना हम नॉर्मली जीते उस टाइम में हम नॉर्मली नहीं जी सकते। जीना चाहे तो भी हम इस घटना में या इस सिचुएशन में नॉर्मली नहीं जी सकते। देन इट नेगेटिवली इन्फ्लुएंसेस द इमरजेंसी सिस्टम। तो इमरजेंसी सिस्टम बोले तो फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन और मेडिकल सिस्टम ये होनी चाहिए, पर कभी कभी उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है। तो कभी कभी फूड पहुंचना चाहिए जिस एरिया में, वहाँ पे फूड पहुंचता नहीं है। कि कभी कभी उससे होता है कि जब तक आपको फैसिलिटी मिलती है या सेंस मिलती है, हेल्प मिलती है, तो उससे पहले ही आदमी चला गया, आदमी का मीन्स या इंसान का देहांत हो जाता है। तो द नॉर्मल नीड्स एंड प्रोसेस लाइक द शेल्टर एंड हेल्थ आर अफेक्टेड एंड डिटीरियोरेट द डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डिजास्टर। तो जो जिस एरिया में उसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा ये उसकी इफेक्ट दिखाई देती है, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी या इमरजेंसी हेल्प दी जाती है। लेकिन इमरजेंसी हेल्प पहुंचने से पहले ही कभी कभी इंसान अपना क्या बोलते हैं इंसान का देहांत हो जाता है। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन है, कुछ वीडियोस या कुछ न्यूज़ आपने देखे होंगे आउट ऑफ कंट्री के। इफ यू हैव सीन और नॉट, इवन आई डोंट नो, कि एक 80 साल की जो एक बुजुर्ग महिला थी और उसके पास वो भी कोविड-19, शी वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19 एंड besides her that one of the young girl or one of the young boy, someone else is there, that she said to the doctor, whatever the facilities you are providing me, please don't provide me, and you please provide this particular person, because the young generation or that these people are going to lead the nation in a good way or in a much way. So माई लाइफ इज गोइंग टू बी ओवर राइट नाउ। तो ऐसा उस बुजुर्ग महिला ने उसने बताया था कि मेरा लाइफ तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन अभी ये जो जीने वाले हैं, अभी जिनकी जरूरत है नेशन को, उनको बचाने की कोशिश कीजिए। तो डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, देन यहाँ पे देखिए, इट मे ऑल्सो बी टर्म एज अ सीरियस डिस्ट्रक्शन of the functioning society. So at that time, whatever happens or whatever we see in front of us, and to handle this situation, it is difficult for everyone. Though causing widespread human, material or environment losses, which exceed the ability of the affected society to cope using its own resources. So from the past onwards, till right now, the man is using environment, man is using his intelligence, using, but more than the capacity he is using, or he is, in short, we can say that he is exploiting that environment. So if effects are seen in form of disaster or something else happen. So do you understand? Do you understand? Yes. ओके, अभी का मैं आपको एक सिचुएशन का अभी एक दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, बिकॉज ऑफ द कोविड-19, ओके, दैट थ्री मंथ्स वी आर लॉक एट आवर होम। लॉकडाउन था 3 or 4 months and still we are locked, we are not too much free. Am I right? Am I right? Am I right or not? If you not answer me, I will stop. If you answering me, I want to interact with you. Do you listen me? Do you listen me? Yes, ma'am. Okay, then Yes, ma'am. reply. Yes, ma'am. Okay, so till the 3 months we are locked, strictly locked at our home. Am I right? Okay, but when we speak generally, whenever the everything is going to be normal or everything is normal, we will see or we experience that we experience the noise pollution, air pollution, and something happen. Okay,
But because of the COVID-19, what we experience? Yes, air is fresh. Am I right? When you get up early in the morning, the air is fresh. Less vehicles are used, less pollution, less pollution. Na? So we will see this kind of the difference in the environment. Understand or not? If we harm someone else, it will harm to you. If we harm environments, it will harm to us. Do you understand or not? Understand or not? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. this happens to us also, that particularly human beings. Okay. See, thus the disaster may have following main features. Disaster occurs, but which are the main which are the main features of the disaster? That is unpredictability. Unpredictability, no flexibility. Unpredictability means it will occur anytime. Unfamiliarity, we are not familiar whenever it will come, that we, even though we don't know the speed, urgency and uncertainty and threat. Okay, something happens, for example, okay, we are sitting quietly and someone will come and will make us threat. Okay, क्या कर दिया, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? तो हाउ आवर्स रिएक्शन, हाउ आवर्स रिएक्शन if we are sitting alone, okay, if we are sitting alone in the room, okay, and what, nothing we are doing, we are just sitting quietly and someone will disturb in a horrible way, then what is our reaction? What is our reaction? What Shock. is shock? We will be scared, shock or scare. Okay, so this time means whenever this disaster occurs, so it will give the shock or it will give the threat to the people because it is not fixed. Okay, whenever it will occur. So you can see the next slide. Now, types of disaster. Okay, there are main three types of disaster. First is natural disaster, second one is man-made disaster, and third one is hybrid disaster. In your notebook, in your textbook, three types of disasters are given. First one is, which is it? Which is it? Natural disaster. Natural disaster. Disaster. Second wala Man-made disaster. man-made disaster, और third wala Hybrid disaster. hybrid disaster. Okay, now you can see on this one slide natural disaster. Now it is divided into 5 categories. Now we will see. That first is geophysical, second वाला है biological, third वाला है meteorological, fourth वाला है hydrological and fifth वाला है climatological. अभी याद रहेगा आपको? ये याद रहेगा क्या आपको? याद रहना ही चाहिए. Okay. So how how the natural disaster is divided into different parts. In how many parts? In how many parts? 5. 5. Which are they? Which are they? Can you see the slide properly? It looks little bit blur, but can you read it properly? Yes, Can you? ma'am. Okay. First is Geophysical. geophysical. Second one is Physical. second वाला is Biological. 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 Third वाला is Meteorological. meteorological. Okay. Fourth वाला is Hydrological. Hydrological. and पांचवा fifth वाला is पांचवा Climatological. क्लाइमेटोलॉजिकल. अभी हम ये बारी बारी देखेंगे. जियोफिजिकल, तो जियोफिजिकल में क्या आता है? मीन्स जियोफिजिकल मीन्स इज रिलेटेड टू जियोग्राफिकल लोकेशन, इज रिलेटेड टू जियोग्राफिकल लोकेशन. ओके, पहला आता है अर्थक्वेक, दूसरा है वॉल्केनो, तीसरा है लैंडस्लाइड, वो भी यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है ड्राई, एंड रॉक फॉल, वो भी लिखा है ड्राई. तो इस टाइप के जो डिजास्टर आते हैं वो जियोफिजिकल में आते हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस वन प्रॉपर्ली?
डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? अभी बायोलॉजिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल? तो किससे जुड़ा हुआ होता है? बायोलॉजिकल किससे जुड़ा हुआ होता है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग। तो उसका देखिए आप देख सकते हैं, पहला है एपिडेमिक, देन दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीज, एंड तीसरा है, क्या लिखा है यहाँ पे? इंसेक्ट बाइट्स। ओके, इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। अभी मीटेरोलॉजिकल, मीटेरोलॉजिकल कहाँ से जुड़ा हुआ है? मीटेरोलॉजिकल कहाँ से जुड़ा हुआ है बताइए मुझे, किससे जुड़ा हुआ है मीटेरोलॉजिकल? किससे जुड़ा हुआ है मीटेरोलॉजिकल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटेरोलॉजिकल? बताइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटेरोलॉजिकल? बताइए। It is related to atmosphere. It is related to atmosphere. Then what about the geophysical? What about the geophysical? बताइए मुझे। ओके, जियोफिजिकल लैंड से रिलेटेड है ओके, और हाँ मुझे वही, हवा से। हाँ मुझे वही चाहिए था आंसर। तो जियोफिजिकल लैंड से जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो है मीटीरियोलॉजिकल जो ये है वो हवा से, वातावरण से संबंधित होता है, एटमोस्फियर से संबंधित होता है। तो उसमें क्या आता है देखिए, लोकल स्टॉर्म। हमारे अभी जो 3 जून में आया था वो लोकल स्टॉर्म था क्या? हमारे यहाँ पे अभी जो जून में हमने एक्सपीरियंस किया तो वो कौन सा स्टॉर्म था? साइक्लोन था कि ये लोकल स्टॉर्म था? साइक्लोन। साइक्लोन था। ओके, आगे का दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, और लास्ट वाला क्या लिखा है? टोर्नाडोज। टोर्नेडोज, उसका मतलब क्या हुआ? टोर्नेडोज का मतलब क्या हुआ? टोर्नाडोज का मतलब क्या? अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आप इस्तेमाल करके मीनिंग देख के आप मुझे बता सकते हैं उसका मतलब क्या हुआ टोर्नाडोज का? क्या हुआ उसका मतलब? टोर्नाडोज का मतलब क्या हुआ? भौरा। भंवरा, देखा आपने ठीक से? जो भंवरे की तरह घूमता है वो क्या? टोर्नाडोज। रैपिड रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, जो भंवरे की तरह, ओके, रैपिड रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, जिसको हम भंवरे की तरह वो घूमता है, साइक्लोन, रिलेटेड टू साइक्लोन, तो उसका हम बोलते हैं टोर्नाडोज। ओके, देन हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल किससे जुड़ा हुआ है? पानी से। पानी से। हाँ, तो ये हुआ सुनामी, फ्लड। फिर यहाँ पे क्या लिखा है आपको? क्या लिखा है? पढ़िए, हेलस्टोर्म। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हेलस्टोर्म। हेलस्टॉर्म। ओके, एंड लैंडस्लाइड। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड लिखा है जियो फिजिकल में, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड है। तो जो जियो फिजिकल में लिखा है वो ड्राई वाला है, और यहाँ पे है वो कैसा है? वेट वाला। लैंडस्लाइड एंड रॉकफॉल, वेट। ओके, क्लाइमेटोलॉजिकल, once again it is related to climate, heat wave, cold wave, drought and forest fire. So do you understand all this point properly? Do you Yes, understand? ma'am. Okay. Okay. Next slide. We will see. Now that I have once again put the one image of two types, that man-made and natural. Natural का हमने देखा, उसमें 5 types देखा। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नोट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको दिया जाता है आपने शायद देखा होगा। जिसने ओके, आप मुझे बताइए किसने पीपीटी थोड़ा सा तो लिखा था, 1 या 2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन लिखे थे?
लिखे थे जो मैंने भेजे हुए आपको पीपीटी, उसमें से किसने नोट्स बनाए? सही बताइए मुझे, किसने नोट्स बनाए हैं? आपने देखा उसको, आपने पढ़ा? यस मैम। तो आपको Yes, क्या, ma'am. आपको क्या समझ में है? आपको उसमें आपको क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट्स मिला क्या? उसमें एक्स्ट्रा नोट्स मिला कि नहीं मिला? कि जो आपने कॉपी पेस्ट जो गूगल पे से किया है, तो उससे ये अलग है कि नहीं है? जो आप जो नोट्स निकालते हैं, आपने जो प्रोजेक्ट मुझे भेजे हैं, तो उसमें से ये अलग दिखता है कि नहीं दिखता है? अलग दिखता है? हेलो, Yes, ma'am. क्यों मैं आपको ये प्रश्न क्यों पूछ रही हूँ, क्यों आपको सवाल पूछ रही हूँ? क्योंकि मुझे आपको ये सिर्फ महसूस करवाना है कि आपके लिए सभी टीचर्स बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनको जरा सपोर्ट कर दें तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से अच्छा नोट्स मिले तो बच्चों को देना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, पर बच्चे सही में उतना मेहनत हमको दिखाई देता है क्या? नहीं, कभी रिस्पॉन्स भी नहीं होता है। अभी 100% में बच्चों में से 18-20 बच्चा प्रेजेंट है, उसका क्या करने का? कहाँ ढूंढने जाने का हमको? तो ये बात जरा ध्यान में रखिए जब आप खुद मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपका एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपका खुद का मेहनत किया, नोट्स आपने निकाला है, तो किसी ने कॉपी पेस्ट किया तो चलेगा क्या? किसी ने कॉपी पेस्ट किया तो चलेगा क्या? पूरा का पूरा, नहीं. पूरा का पूरा, नहीं. जरा भी अलग नहीं, पूरा का पूरा किसी ने कॉपी पेस्ट किया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपका खुद का मेहनत किया हुआ बनाया हुआ है। तो अभी आपको कभी ऐसा होता है कि नहीं, फील होता है कि नहीं हम, हाँ मैंने खुद का मेहनत किया बनाया हुआ है, मैं क्यों दूँ, खुद मेहनत करो, है कि नहीं? लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, जो आपको प्रेजेंट दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको अभी जो नेचर के बारे में पता भी नहीं था, शायद पता था आपको? शायद पता था नेचुरल डिजास्टर के 5 टाइप्स होते हैं, पता था आपको? हाँ. हाँ, तो अगर वो आपको ऐड करना है, आपको लिखना है, आपको अच्छे से मार्क्स एक्वायर करना है, तो आप वो भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, अच्छा वाला नोट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, ये आपको यहाँ पे दो दिखाई देते हैं, एक नेचुरल है और एक है मैन मेड। नेचुरल के बारे में ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, फिर से मैं आपको एक बता देती हूँ। अवेलेंचेस, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड एंड आई थिंक यहाँ पे क्या लिखा है, लाइटनिंग, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, थंडर, आई थिंक थंडर। ओके, और मैन मेड में है फायर, बिल्डिंग कॉलेप्स, इंडस्ट्रियल हैजार्ड, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट एंड क्या लिखा है यहाँ पे, Stampede. स्टैम्पेड एंड रायट एंड Out. टेररिस्ट अटैक। ओके, ये देखिए, ये इमेजेस आपको दिखाई दे रही है। इमेजेस क्लियर दिखा रहे हैं, ब्लर दिखाई दे रही है? Blur है. हाँ, ब्लर है, इसकी वजह से पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल डिजास्टर के बारे में देखेंगे। द नेचुरल डिजास्टर इज अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। तो जो का वाकई में कि जो नेचुरल डिजास्टर है, तो उसके रिजल्ट, उसके जो इम्पैक्ट हमको दिखाई देती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो नेचुरल प्रोसेस में, नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ में हमको दिखाई देती है। उसकी इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम होती है, उसकी लॉन्ग टाइम हमको इफेक्ट दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल, आपको ये हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों नाम पता है? हिरोशिमा एंड नागासाकी। Yes. Yes, हाँ, ma'am. तो ये जापान में आए हुए, ये भी आपको पता होगा, जापान में। ओके, हिरोशिमा एंड Wow. नागासाकी, कि जब ये बहुत साल पहले वहाँ पे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वॉर में जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, तो उसकी वजह से उसकी जो केमिकल या फॉर एग्जांपल जो बारूद गोला या कुछ भी जो बम इस्तेमाल किया गया, उसमें ऐसे केमिकल थे जिसकी वजह से उसकी इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन पे भी दिखाई दी। आपने शायद सुना भी होगा, या आर्टिकल या ब्लॉग्स आपने कभी भी पढ़ा भी होगा, तो आपको पता होगा कि उसकी वजह से जो आने वाली जो जनरेशन थी, वो डिजेबल बेबी होता था, मल्टीपल डिजेबिलिटी वाला बेबी होता था, किसी के पैर नहीं होते थे, किसी में कुछ 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 प्रॉब्लम होते थे।
तो ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म यहाँ पे दिखाई देता था। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes. ओके, अभी यहाँ पे देखें एग्जाम्पल्स। अभी नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल्स लिए तो फ्लड्स, देन नेक्स्ट पॉइंट इज hurricanes, then tornadoes, volcanic eruption, earthquakes, and tsunamis, storms, and other geographical process of geological process. Natural disaster can cause the loss of life or damage property, and typical some of economic damage in its wake, the severity of which depends on affected population. Resilience means ability to recover, and also on the infrastructure available. तो जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो उसकी इम्पैक्ट डिजास्टर की इम्पैक्ट कैसे दिखाई देगी? जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा उसकी इम्पैक्ट कैसे दिखाई देगी? कम या ज्यादा दिखाई देगी? कम या ज्यादा दिखाई देगी? हेलो, जब नेचुरल डिजास्टर्स व्हेनेवर द नेचुरल डिजास्टर अकर, तो उसकी इम्पैक्ट हमें पॉपुलेशन एरिया में ज़्यादा दिखाई देगी, जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगी, या लेस पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगी? कहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगी? Dense population. डेंस पॉपुलेशन है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी इम्पैक्ट हमें ज़्यादा दिखाई देगी। तो उसकी कैपेसिटी कितना रिकवर कर सकते हैं, कितना रिकवर होना चाहिए, ये उसका फिक्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अभी भी केरसी में जो नुकसान हुआ है, अभी जो साइक्लोन आया था कि कुछ लोगों के बाग बगीचे पूरे के पूरे ही नुकसान हो गया, जितना क्रॉप था वो सबका नुकसान हो गया। तो उसका रिकवर हो सकता है क्या? अभी रिकवर करने का कोशिश भी करे तो भी रिकवर हो सकता है क्या? रिकवर हो सकता है? यस और नो? रिकवर हो सकता है उसका? रिकवर हो सकता है उसका? Are you listening to me? All of you are you listening to me? रिकवर उसका हो सकता है उस टाइम में? इतना कम समय में उसका रिकवर हो सकता है? यस और नो? नहीं हो सकता उसका रिकवर। उतना तो नहीं हो सकता, बट नहीं, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। ओके, तो अभी जब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी जो सिचुएशन है, तो हरणे में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, दापोली में हुआ, मुरुड़ में हुआ, केरशी में सबसे ज्यादा नुकसान। तो कुछ लोगों के तो घर भी चले गए, कुछ लोगों का घर पूरा का पूरा टूट गया। तो उस टाइम उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था, तो सुनने में ऐसा भी आया था कि लोगों ने अपने जो गहने थे वो बेच के जो थोड़ा बहुत वो फिर से जीरो में से स्टार्ट कर सकते, तो उन्होंने वो भी किया, क्योंकि वो तभी की जरूरत थी, तभी की वो जरूरत थी। डू अंडरस्टैंड? शायद आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, जिसके घर के आसपास ऐसा कुछ हुआ है उसने देखा भी होगा। सबके पोल मीन्स फॉर एग्जांपल जब ये साइक्लोन आया था तो दापोली में सब पोल गिर गए थे, सब पोल गिर रहे थे, जो पतरे होते हैं, ओके, वो सब उड़ रहे थे, पेड़ सब गिर गए थे। तो उसको रिकवर, उसको हटाने में तो ऐसा हुआ क्या कि चलो आप आपके घर के बाजू में एक पेड़ गिर गया है, आपने इंसान बुलाया और तुरंत आया है, उस टाइम अवेलेबल थे क्या इंसान? नहीं। जैसे हम पानी के लिए या किसी चीजों के लिए कतार में खड़े रहते हैं, उस टाइम वैसी सिचुएशन थी कि अगर वो रिपेयरमेंट करने वाला कब आएगा और कब ये ठीक होगा और कब हम शांति से रहेंगे। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बिजली भी नहीं थी, और कभी कभी तो फॉर एग्जाम्पल किसी के घर पे तो शायद 20 दिन के बाद बिजली आई या 10 दिन के बाद बिजली आई, या किसी के घर महीना भी बिजली नहीं थी, महीना भर बिजली नहीं थी, महीना डेढ़ महीने के बाद। अभी भी बिजली है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन अभी तो आ गई होगी शायद। लेकिन उस टाइम का जो सिचुएशन था, तो वो मेंटली आपको डिप्रेस कर देता है, मेंटली आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। वही सोचना है, रोज उठना है, वही देखना है, वही सोचना है, वही दिखाई देता है, तो उसकी रिकवरमेंट नहीं हो सकता। ओके, आगे देखिए, एन एडवर्स इवेंट विल नॉट राइज टू द लेवल ऑफ डिजास्टर इफ इट अकर्स इन
any without vulnerable population. In vulnerable area, however, such during the 2015 earthquake, the earthquake can have the disastrous consequences and leave lasting damage which can require years to repair. जैसे मैंने अभी बोला, अगर किसी का नुकसान होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, तो इंसान चले जाने के बाद या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होने के, प्रॉपर्टी तो हम खड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान चले जाते हैं तो उसको हम वापस ला सकते हैं, उसको हम वापस ला सकते हैं नहीं। नहीं। अभी कोविड-19 में फॉर एग्जांपल अभी का जो एक, मुझे तो ऐसा लगता है ये एक डिजास्टर ही है कि कोविड-19 के साथ साथ हमें न्यूज़ जब हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पे बाढ़ हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये गिर रहा है, वहाँ पे भूकंप आ रहा है, ये सब तो न्यूज़ में सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? न्यूज़ में न्यूज़ आप सुनते हैं ना Yes, रोज? ma'am. हाँ, तो उसमें सुनाई देता है कि नहीं कि यहाँ पे बाढ़ हो रही है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये जो ये कोविड-19 है वो एक मैन मेड डिजास्टर है बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। एम आई राइट? अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा जो सोचने का जो जरिया है, मेरा जो देखना, मुझे जो एक्सप्लेन करना है, मैं आपको बता रही हूँ। तो एक डिजास्टर जैसा ही है कि नहीं? डिजास्टर जैसा है कि नहीं? यस। ओके। इंसान ने बनाया, इंसान खत्म हो रहा है, इंसान ने बनाया, इंसान खत्म हो रहा है, लॉस ऑफ लाइफ। सोचा भी नहीं, बनाते टाइम बना दिया, पर कितने मरने वाले हैं, कितने लोग जाने वाले हैं। आप कभी देखिए न्यूज़ में कि उसमें दिखाई पड़ेगा आपको कि जो डेड बॉडीज होती है ना कोविड-19 में, जिसको कोविड-19 हुआ है, वो डेड बॉडीज कैसे फेंकी जाती है, उसको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई गुजर गया, तो किसका इंतकाल हो गया, तो उसको हम कंधे पे उठा के छोड़ के आते हैं, स्मशान में या सीमेंट्री में हम दफना के आते हैं। ओके, लेकिन अभी सिचुएशन ही ऐसी है कि इंसान से इंसान को बोलने में, हाथ लगाने से भी डरता है। Am I right? अभी ये सिचुएशन है कि नहीं? गले से गले लगाने में भी डर लगता है, हाथ मिलाने से भी डर लगता है। Am I right? यस। हाँ, तो वो सब कुछ हमको ये मैन मेड डिजास्टर, ये जो कोविड-19 है ना, वो मैन मेड डिजास्टर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो वहाँ पे जहाँ पे भी अर्थक्वेक होता है, तो जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, तो उसकी इम्पैक्ट हमको वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स उसके जो हम रिजल्ट होते हैं वो भी सालों तक लोग उसको झेलते रहते हैं। ओके, okay. Last one, hybrid disaster. Hybrid disaster occurs when there is a link between man-made disaster and natural disaster. So there is a combination of the natural disaster and man-made disaster are called hybrid disaster. Hybrid means दोनों से मिला हुआ. Okay, for example, deforestation means जंगल तोड़ना. Okay, जंगल तोड़ने से तो okay, when we go for deforestation, the human being is using deforestation. So can we imagine the fertility or fertility of the land will be stable? Fertility of the land will be stable or not? Fertility not, क्योंकि जितना जंगल टूटेगा, जितना पेड़ कटेगा, उतना वो फर्टिलिटी कैसा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसका वो फर्टिलिटी, लैंड का जो फर्टिलिटी है वो कैसा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से इट कन्वर्ट्स इनटू द फ्लड, ड्रॉट एंड कन्वर्ट्स इनटू द फ्लड एंड ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर्स मींस जंगल को आग लगा देना, जियान चौगले कुछ पूछना चाहते हैं? जियान चौगले, okay, so do you understand all of this point properly, all of you? Yes, ma'am. Okay, we shall Yes, stop ma'am. here right now. We will continue in the next lecture.